Hello student, good morning. How are you? I hope that you will find with your family. Today we are going to discuss about integers. First, definition of integers. Integers, all counting number 0 and negative of all counting number taken together to form are known as integers. All counting number 0 and negative sign of all counting number taken together is known as integers. Example, integers is denoted by capital N. It is denoted by capital I. Integer is denoted by capital I. And example of integers: -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, 0, 0, +1, +2, +3, and so on. It is the example of integers. There are two types of integers: positive integers and negative integers. Positive integers. Positive integers. All counting number with positive sign is known as positive integers. Positive integers is denoted by capital I plus. And examples of positive integers are +1, +2, +3, +4, and so on. Second, negative integers. All counting number with negative sign is known as negative integers. Negative integers is denoted by capital I minus. And examples of negative integers is -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, and other negative counting numbers. Next topic: how can we indicates integers on number line? Firstly, we take 0. Here 0. It is the arrowhead of both sides of line. It is known as arrowhead. 0, +1, +2, +3, +4, +5. Here -1, -2, -3, -4, -5. Distance. Listen. Distance between any two integers is always equal. It means
0 एंड +1 के बीच जो डिस्टेंस होगी इसको डिवीजन बोलते हैं, सब डिवीजन, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। या +1 और +2 के बीच जो डिस्टेंस है इसको भी सब डिवीजन बोलते हैं। ये जितने भी इंटरवल्स आते हैं ये सब डिवीजन बोलते हैं। और ये सब डिवीजन चाहे नेगेटिव साइन 0 एंड -1 -2 के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम सब डिवीजन बोलते हैं। और ये सब डिवीजन इक्वल होने चाहिए, इनकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। एंड हमेशा निगेटिव इंटीजर्स 0 से लेफ्ट हैंड साइड में राइट करते हैं या इंडिकेट किया जाता है। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से हमेशा राइट हैंड साइड में इंडिकेट करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज 0 से एंड नेगेटिव इंटीजर्स से ग्रेटर होते हैं। और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से स्मॉलर भी होते हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर से भी वो स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। और हमेशा अगर हम लोग नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर्स को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यह 0 -5 -4 -3 -2 -1, दैट इज रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर दैट, आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि निगेटिव साइन में 0 से जस्ट स्मॉल, 0 से जस्ट छोटा जो होता है आपका -1 होता है, फिर उससे छोटा -2 होता है, फिर इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, इससे छोटा इसी आर्डर में हम लोग ऐसे घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग मूव करते जाते हैं। तो हमेशा हमें जो रिप्रेजेंटेशन करना है नेगेटिव इंटीजर्स का, हमेशा 0 से राइट लेफ्ट हैंड साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हमेशा 0 से राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब डिवीजन, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होती है इक्वल होता है। ईच इंटरवल के बीच जो डिस्टेंस होती है आपकी ये इक्वल होती है। नेक्स्ट सम पॉइंट्स यू रिमेंबर दैट एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0। एवरी नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 +1 +2 +3, every negative integer is less than 0 and every positive integers is greater than 0. Understand? Next, absolute value of an integers. Absolute value of integers. Absolute value of an integer is numerical value. जो absolute value होती है वो always किसी भी integers की जो numerical value होती है, it means numerical value का मतलब magnitudes. It means वो हमेशा अपन जब भी हम किसी भी दिए गए नंबर्स integers का absolute value निकालेंगे तो वो always प्लस होता है, वो always पॉजिटिव हो जाता है। लाइक दैट इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन mod a. It is called mod. It is called mod. It is mod. And absolute value of any positive integers or negative integers is always, any positive integers or negative integers is always positive.
absolute value of any integers are positive integers or negative integers. We always find positive. For example, minus 16. What is the absolute value of minus 16? It is 16. Absolute value of plus 15 is equal 15. Next, how can find or identify? Listen here. East, west, north, south. It is the middle point. It is known as represented by O. is called origin. अगर इस पॉइंट से अगर इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट से हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये हमेशा हमारा इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ पॉजिटिव दिखाते हैं। अगर हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस ओरिजिन से अगर हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हमेशा निगेटिव साइन में, इसको हमेशा निगेटिव साइन में इंडिकेट करते हैं। अगर नॉर्थ ओरिजिन से हम लोग अगर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, एंड साउथ डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो ऑलवेज निगेटिव इंडिकेट करते हैं। अदर थिंग्स, अगर बैंक से हम लोग बैंक में अगर पैसा हम डिपॉजिट करते हैं तो ऑलवेज इट इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव। यानी बैंक में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेंगे। और बैंक से अगर पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम लोग निगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। अगर किसी बिजनेस में हमें प्रॉफिट होती है तो उसको हम पॉजिटिव साइन में इंडिकेट करते हैं, और किसी बिजनेस में हमें लॉस होता है तो उसको ऑलवेज हम निगेटिव साइन में इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज, अगर हाइट हमें मेजर करना हो, या किसी माउंटेन की अगर हाइट हमें मेजर करनी हो, या किसी ओशियन या सी की डेप्थ मेजर करनी हो, तो हमेशा हम लोग एक स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हैं जिसको बोलते हैं सी लेवल। सी लेवल से अगर आप ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सी लेवल मतलब समुद्र लेवल से अगर ऊपर की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो इसको हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं। और सी लेवल से अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो इसको हम हमेशा निगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। इट मीन्स सी लेवल से अगर डेप्थ मीन्स गहराई, अगर आप वैली की या ओशियन की डेप्थ गहराई मेजर करना हो तो वो वैल्यू हमेशा निगेटिव साइन में इंडिकेट करते हैं। और किसी माउंटेन या हिल्स की हाइट अगर मेजर करनी हो तो हमेशा पॉजिटिव साइन में इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, टॉपिक successor of an integers। किसी भी इंटीजर्स का अगर सक्सीजर फाइंड करना हो तो सक्सीजर फाइंड करने के लिए उस दिए गए इंटीजर्स में हम लोग हमेशा 1 प्लस करते हैं। जब हम उस दिए गए सक्सीजर में 1 प्लस ऐड कर देंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर इस दिए गए इंटीजर्स का सक्सेसर कहा जाता है। इट मीन्स हियर प्लस 11। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ प्लस 11? सक्सेसर ऑफ 11
of 11 plus 11 is plus 11 plus 1 equal plus 12. It is the successor of 11. And successor of any negative integers like that minus 9. So successor of minus 9 is minus 9 plus 1. Minus 9 plus 1. माइनस 9 में प्लस 1 ऐड करने पे ये हमें एक निगेटिव साइन और अदर पॉजिटिव साइन, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड हियर आपको माइनस 8 फाइंड होगा। एंड सक्सेसर ऑफ माइनस 9 इज माइनस 8। अदर प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर, predecessor of an integers. प्रीडिसेसर, किसी भी दिए गए इंटीजर्स का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए उस इंटीजर्स में 1 हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें उस दिए गए इंटीजर्स का प्रीडिसेसर फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस 23, प्रीडिसेसर ऑफ माइनस 23 इज प्रीडिसेसर ऑफ माइनस 23 इज माइनस 23 माइनस 1। माइनस 23 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट, हियर बोथ आर निगेटिव साइन। जब दोनों निगेटिव साइन में नंबर होते हैं दिए गए हैं तो ये हमारे साइन को आपकी डिजिट हम लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन हमारी माइनस ही साइन पुट करते हैं। एंड यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 24। इट मीन्स प्रीडिसेसर ऑफ माइनस 23 इज माइनस 24 एंड अदर प्रीडिसेसर ऑफ प्लस 39। Predecessor of plus 39 is equal to plus 39 minus 1. Here 1 is positive sign and other is negative sign. So it is subtract and we get plus 38. Understand? Okay. Thanks.